Welcome to Thursday Thought Leaders with Harbinder Narula on BW Healthcare World. In this era where education and healthcare is transforming the way we live, the quality of our lifestyle, I have with me a very special guest, Mr. Pradeep Gupta, who founded Sharda University and Sharda Hospital. Someone who became an entrepreneur in 1979 and started supplying engineering products to educational institutions as well as laboratories, and then grew the business to become the largest in North India, and then moved to Chennai to take that business to south of India, and then come back to create an impact in the society through healthcare is when he established Sharda Hospitals. I think it was in 2005. Yeah. 2005, and his vision of bringing high-tech healthcare and make it affordable is something that he is doing at Sharda Care. Thank you. Welcome, Mr. Gupta, to this show. Thank you. Mr. Gupta, what are the most pressing needs that we face in India when it comes to healthcare? And also, what is it that you have observed in north of India that you are addressing right now through Sharda Hospital? Okay, we started as a medical college. Okay, Ji. Sharda School of Medical Sciences. In 2006 we applied. In 2009 we got the approval. So, as a medical college, we have a very senior professors from the top institution in Delhi. Raja, Lady Hardinge, UCMS, AIIMS, Safdarjung. So, we were lucky that we having a 7 medical college, the top medical college in the country, just few hours, few minutes away from this campus. Yeah. And since the government of India, hospitals in Delhi are not allowed to do private practice. Correct. And that is how the medical education in Delhi particularly, that is one of the best medical education is comparatively North India. क्योंकि बाकी यूपी में जाइए आप तो if you go to Rajasthan, Madhya Pradesh, a lot of professors do private practice. Correct. So we had good that we found all the very ethical professors, and this medical college is ranked one of the top medical college in the country. Last year, our opening was All India rank around 24,000, and with a NEET score of 656. Lovely. And the closing in second counseling was 630, with almost 35,000 All India rank out of 20 lakh schools appeals. So that is that goes to like we were able to get one of the best clinician teachers. Being in Delhi, तो वो retirement के बाद यहाँ आ जाते हैं, कुछ लोग post retirement pre retirement भी लेके आए हैं. So that we are doing good. And however, since it's a medical college, so we have to adopt the very ethical practices. Correct. Because that was never been an agenda of the commercial. Because in a medical college, for doctor, every patient is a case study. Absolutely. Okay. So, and this is, most of them are coming from the government background. So, minimum medication is being recommended. Because every allopathic medicine has some side effects. Correct. तो हमारे जो एक ट्रेंड बन गया है कि भाई वन diagnose rightly, number 2 treat them rightly, and chunki it's a collective wisdom. Like in medicine department we have around 25 doctors, plus few specialists in the like cardiology, nephrology, gastroenterology. Apart from that, Correct. so I have never found any cases which we have handled has not been has been gone bad. Most of the cases has recovered very well, and we have handled most complex cases. COVID में आप देखिए कि when we started, we have a 30-bed ICU as per the recommendation, and when the COVID went off, so we have a 250-bed ICU. Okay. क्योंकि योगी जी आए, he asked me कि we need to do this, and we put the first RT-PCR lab in privately in North India. Lovely. Even the government was not interested to give a license for RT-PCR lab because कितने cases आ रहे हैं ना, तो since for us the importance part that कि हमारे जो doctors हैं, staff है, we should able to detect them at the early stage. Correct.
So almost every second day, third day, all my team who has been involved in the healthcare मतलब services में उन सबके टेस्ट हो रहे थे. फैंटास्टिक. And in fact government was pressing कि भाई आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखा रहे हो. मैंने कहा भाई कि जितना आप कंटेन कर लोगे, अगर पेशेंट को पता है कि मैं पॉजिटिव हो गया हूँ, एटलीस्ट यू विल नॉट गेट इन टच विद आउटसाइड पीपल. करेक्ट. एंड टाइमली अगर पता लग जाएगा तो एक जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसमें वी कैन सेव हिम. करेक्ट. And we have the credit, accomplishment कि we have saved people of 95 year, 102 year, 103 years लोगों की हमने life बचाई. And of course we lost sort of young generation also because when they come with the बहुत खराब जब होके आए, जब पूरा lungs वो खत्म हो गए, तो we are helpless. And those days was very terrible days because ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही थी. जी. पूरी रात जाग करके चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन करके भैया किसी तरह ऑक्सीजन दे दो. And it was like a hell of a job, and I think and I took it, this situation as a charity to society. People made a lot of money कि भाई चलो ठीक है 1 लाख रुपए का बेड लेंगे, 2 लाख रुपए पर डे का लेंगे, 50,000 पर डे लेंगे, but we said nothing doing. Who knows we will live it till tomorrow or not because I have to come every day. तो मैंने कहा ईश्वर ने एक मौका दिया है मानवता की सेवा का, and we did almost free. या तो वो आयुष्मान क्रेडिट पर था, प्राइवेट में बहुत कम पेशेंट थे, जो भी अब आदमी की जान जा रही है उसमें क्या ही पैसे कमाने. बिल्कुल बिल्कुल. सो माई कॉन्शियस डिड नॉट अलाउ एंड वट एवर वी डू. तो 2 साल हमने जो ट्रीटमेंट दिए थे, एंड आई थिंक मीडिया वॉज कंटिन्यूसली हाईलाइटिंग. सो आई वुड से दैट probably it is one of the biggest achievement of my life that I could I did something good for the as a point of charity to society. I think it is a very beautiful thought because जब भगवान देता है तो शायद आपको जरिया बना के भेजता है. ऐसा है कि हम तो क्या ही करेंगे, लेकिन हाँ, I am lucky, I am blessed with the God that I have got 2 wonderful profession happening through under my leadership. One is healthcare, which is the most noble cause, and second is education. Absolutely. तो एजुकेशन के बारे में तो कि Absolutely. ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो एक पुण्य का कार्य है वो imparting education. बिल्कुल. And second comes to the treatment. Absolutely. If you are doing honestly, I think because I believe in sort of spirituality and all ना, तो मोक्ष आपको जब भी मिलेगा कि जब आप इस जीवन में आपको ईश्वर ने मौके दिए हैं और उसको ईमानदारी से कर ले. बिकॉज अ लॉट ऑफ यंग जनरेशन्स ऑन स्टेक पर्टिकुलर एजुकेशन 18 साल के होते हैं जब आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो वी ट्राई अवर बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज कि इनको जो बेस्ट पॉसिबल है वो दिया जाए ताकि यहाँ से निकले तो उनको रिग्रेट ना हो कि वी आर चूजिंग द रॉन्ग इंस्टीट्यूशन. करेक्ट. क्योंकि उनकी सक्सेस में ही हमारी सक्सेस है. Absolutely. और वो सक्सेस से ज़्यादा वो एक पुण्य का कार्य है कि आपने एक यंग बच्चे को डायरेक्शन दे करके पढ़ा करके जो भी बच सकता है रिसोर्सेज. आई वुड नॉट से दैट आई 100% सक्सीडेड, क्योंकि मैं कितना भी चाहूँ कि द बेस्ट ऑफ द थिंग्स आई कैन डू, बट आज की डेट में ऐसे टीचर उसी पैशनेट भाव से मिलें जो बच्चों के लिए डेडिकेटेड हों, उसमें थोड़ी सी हमेशा शॉर्टेज रहती है अनफॉर्चुनेटली. एंड बट यस वी स्टिल वी हैव वेरी गुड पीपल, वेरी गुड साइंटिस्ट एंड जो अपना पूरा डिवोशन से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं. एंड किसी भी देश की जो इकोनॉमी है दैट बिल्ट इन द यूनिवर्सिटीज़. Absolutely. आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा कर देख लीजिए. इट वाज नॉट इंडस्ट्रियलिस्ट, इट वाज इंस्टीट्यूशन वेयर द रिसर्च फाउंडेशन इज बिल्ट, वेयर द टैलेंट इज नर्चर्ड, वेयर द माइंड वाज ओपन, वेयर द एस्पिरेशन वाज क्रिएटेड. Correct. एंड दीज यंग पीपल विल बिकम लीडर्स ऑफ टुमारो. Fantastic. And I think सक्सेस 100% हो ना हो, बट इंटेंट अगर 100% है तो आप सक्सीड वैसे ही कर गए. तो बस आई ऑलवेज कीप कि मेरा जो इंटेंट है वो 100% उसमें कोई डिविएशन नहीं होना चाहिए. एंड आई थिंक द वे आई स्टार्टेड माई कैरियर वे बैक इन 1978 विद जस्ट 10,000 रुपीज़. ओके, तो इतनी जर्नी के बाद में आने के बाद वो लर्न अर्न एंड रिटर्न, तो इट्स अ टाइम फॉर यू टू गिव बैक सोसाइटी. एब्सोल्युटली. एंड गॉड इज बीन वेरी काइंड. एंड हमारे ज़माने में तो आपको याद होंगे पिक्चरें आती थी, वो रोटी कपड़ा और मकान, अनएम्प्लॉयमेंट वाज बिग इशू, बिजनेस वाज नॉट गोइंग, सब कुछ राशन से मिलता था 60s 70s 80s में. हाँ. तो ये तो थैंक गॉड कि आईटी में 2000 में जब ये रिवोल्यूशन आया, एंड आई थिंक आवर चिल्ड्रंस आर वेरी टैलेंटेड. हमारे देश में ज़रा गणित थोड़ा सा मैथमेटिक्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग कोर हमारे डीएनए में है. जी जी जी. मैथमेटिक्स, क्योंकि
इंडिया एज ए कंट्री फॉर द स्मॉल बिजनेसमैन, वो ट्रेडिंग का जो काम कर रहे हैं ना, हर गली में हर मोहल्ले में आपको थोड़ा बहुत व्यापार करते हुए लोग मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे डीएनए में अर्थमेटिक्स अच्छा है, एंड दैट वी हैव इन कैश इन आईटी। Absolutely. So let me bring the focus to healthcare. आपने आईटी की बात करी, आपने ये बात करी थी कि आपने इंस्टीट्यूशन खोली, हॉस्पिटल बनाया, आपने कोविड में लोगों की हेल्प करी। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती जा रही है, वी बीन एडवांसिंग एवरी ईयर एंड फास्टर टुडे देन एवर बिफोर। या What do you think is the impact that we can create? क्योंकि हम पेशेंट आउटकम की बात करते हैं जब हेल्थ केयर में होता है, और दूसरा पेशेंट एक्सपीरियंस की। इन दो एरियाज़ में टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे Now, हैं? I'll tell you one thing. We have a 1,200 bedded general hospital as part of Yes. medical college. Now we have built another 600 bedded as a super specialty center. जी, Primarily designed to for the JCI compliant है, okay. And India is emerging as a global hub for medical tourism. We have an inherent, strength that we have around 2,000 plus international students from 65 countries, and we have more than 10,000 international alumni. तो हम मेडिकल कॉलेज में भी हम 2011 से पेशेंट आ रहे थे, बट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द सर्विसेज। एंड दूसरा क्या है कि वर्ल्ड वाइड people have a more faith in the academicians in terms of the treatment. आप अफ्रीका जाइए, वहाँ पे जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं वो फेडरल मेडिकल कॉलेजेस में हैं। Correct. आप यूरोप जाइए, द टॉप यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, यस, तो वो सब जो है ना मेडिकल कॉलेज से ही हैं। चाहे क्लीवलैंड की बात करो, स्टैनफोर्ड की बात करो, हार्वर्ड की बात करो, ऑल आर मेडिकल इंस्टीट्यूशन। इंडिया में वी हैव वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस लाइक एम्स है हमारे पास में, पीजीआई चंडीगढ़ है, एसजीपीजीआई लखनऊ है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द वेरी लार्ज मेडिकल नंबर मेडिकल कॉलेज में रिसर्च उस लेवल की नहीं हुई है। करेक्ट। तो our vision was that कि it should become a future John Hopkins or Anderson. Our aims to right now to come closest to the clinical diagnosis, clinical treatment at par with AIMS. Okay, and 25 year, 50 year down the line, we should be in the top 100 medical institution in the world. Foundation and vision is that how far we could able to achieve, that is the God will decide. In my generation, if I able to make this hospital clinically as good as any of the best medical institution, and since it's going to be research driven, क्योंकि जो फैकल्टी हैं हमारा एंगल कॉमर्शियल कम है, क्लिनिकल ज़्यादा है, क्योंकि वी हैव अ डीएम स्टूडेंट्स, वी हैव एमसीएस स्टूडेंट, वी हैव एमडी स्टूडेंट्स। तो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आपको बच्चों को सही तरीके से ही पढ़ाना है और उनको सिखाना है कि बेटा कि पेट के दर्द के लिए हर बार एमआरआई की जरूरत नहीं। यू समटाइम हैपेंस, लाइक डॉक्टर हैव अ प्रेशर कि भाई इतना पैकेज है तो मुझे निकालना है, तो वी हैव इंश्योर्ड इट कि शारदा में कोई डॉक्टर को प्रेशर नहीं होना चाहिए। यू ट्रीट द पेशेंट राइटफुली, गॉड हैज बीन काइंड, एंड आई ऑलवेज बिलीव देयर इज अ स्कोप ऑफ सच इंस्टीट्यूशन which is not looking only commercial, which is looking only clinically. करेक्ट। ऐसे इंस्टीट्यूशन की भी देश में बहुत आवश्यकता है, और इफ़ यू कुड एबल टू अचीव द गोल विच इज़ बेसिकली एम्प्टी, स्पेस इज एम्प्टी। एम्स के बाद दिल्ली में कुछ नहीं है। मेडिकल कॉलेज की बात करो, ठीक है, जस्ट वी हैव मौलाना आजाद, लेडी हार्डिंग, यूसीएमएस, अदर हॉस्पिटल, बट सर्विसेज एट पार विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड, क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी एट पार विद द एम्स और एनी टॉप इंस्टीट्यूशन, एंड केयर हमने जो नाम रखा है, शारदा केयर जो नया बनाया, केयर विद एम्पैथी, जिसमें मानव टच ज़्यादा हो, कम से कम ट्रीटमेंट हो, कम से कम मेडिकेशन हो और मैक्सिमम रिजल्ट्स हो जी। क्योंकि ओवर मेडिकेशन से आई पर्सनली बिलीव, मैं खुद भी अवॉइड करता हूँ कि एनी ओवर मेडिकेशन, खुद भी मैं दवाइयाँ कम से कम लेता हूँ। अननेसेसरी मेडिकेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हर मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट होता है जी। तो कोशिश यही रहेगी कि और इसके लिए पीपल हु इज़ विलिंग टू पे एनीथिंग, बट दे वांट कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही। उतना ट्रीटमेंट हो और सही ट्रीटमेंट हो। जी। तो आई थिंक ये नोबल कॉज भी है बिफोर द गॉड, एंड सोसाइटी के लिए भी अच्छा नोबल कॉज है, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव पुट, हमने आईटी के अंदर आई थिंक वी स्पेंड अराउंड 50 करोड़ रुपीस हमने लगाए। हमने पूरा आईटी एनेबल्ड है, एआई एनेबल्ड है, सारा का सारा डाटा डिजिटल है, टॉप एंड मशीनरी है, बिकॉज वी वांटेड टू ऑल्सो रिसर्च
तो जितनी भी मशीनें आई हैं MRI को, सारी फुल्ली लोडेड हैं विद फुल ऑफ फैसिलिटीज़ विच इज़ बेसिकली एप्लीकेबल फॉर रिसर्च। गॉट इट। एक मशीन होती है आपने लगा दी, एक होती है मशीन जिसमें लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर यू ऐड ऑन करेक्ट। टू गेट दी फॉर रिसर्च पर्पजेस। तो उसकी वजह से आई एम होपफुल कि जो डायग्नोसिस बनेंगे वो होपफुली विल बी बेटर एंड विल बी मोर एक्यूरेट। एंड सिंस वी आर ऑल्सो डूइंग इंटरडिसिप्लिन रिसर्च, द कंप्यूटर डिपार्टमेंट में हमारे प्रोफेसर अशोक कुमार है, ही इज कम फ्रॉम US, स्टैनफोर्ड में थे, तो इज डूइंग लॉट ऑफ वर्क ऑन AI, पर्टिकुलरली इमेजिंग टेक्नोलॉजी, a lot of work is going on। प्रधानमंत्री का विजन भी है कि भाई यूनिवर्सिटी में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होनी चाहिए। बिल्कुल। तो कंप्यूटर साइंस वाले यहाँ के जो AI हैं, क्योंकि हमारा आज भी बहुत बड़ा इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं हेल्थ इक्विपमेंट में, एंड इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, वी नीड टू गेट मैन्युफैक्चर एवरी इक्विपमेंट विद इन इंडिया। करेक्ट। चाइना हैज़, जो आज की डेट में स्मॉलर कंट्री है, बट they have done a wonderful job, and I think they are making every equipment, one of the best equipment in the world. एब्सोल्युटली। So why India cannot do? And I think Absolutely. सारे IIT को मैंडेट दिया है कि भाई आप अपने मेडिकल कॉलेज भी खोलिए अपने सिस्टम में, और बच्चों को इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कराइए। सो वी हैव ऑलरेडी एंड वी आर पुशिंग इट कि भाई ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट हो जिसमें मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सारे डिपार्टमेंट मेडिकल के साथ में, एंड वी हैव अ नर्सिंग कॉलेज, वी हैव अ dental college. So this put together is a very good ecosystem is built. Correct. Things are moving in the right direction. Sir, what I can make out is you are always very forward looking कि आगे क्या ज़रूरत पड़ेगी। There are 3 pillars in my opinion in healthcare. One is accessibility, कि एक हेल्थ केयर अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन अगर अवेलेबल है एक्सेसिबल भी है कि नहीं है। दूसरी चीज़ की अफोर्डेबिलिटी, और तीसरा होता है कि एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है, लेकिन क्वालिटी नहीं है। what is your vision about how can we make a difference in these 3 areas, because you're focusing on research so much? What is your vision of how we can make a difference देखिए in ऐसा this है area? कि since we have a 2 category of beds here, one is the general ward, okay, and where you are living general ward, and you have a तो and we are dealing with a very large number of patient from the आयुष्मान patient, बहुत गरीब लोग भी आते हैं, ऐसे ऐसे पेशेंट आ जाते हैं, घर वाले पटक जाते हैं, एंड यू नो आई नेवर रिफ्यूज एनी पेशेंट विच हैज कम हियर वट एवर टू बी। Okay. कोशिश करते हैं कि भाई जो एक बार आ गया है उसकी जान बचा ली जाए, एंड इन दैट हॉस्पिटल वी आर वर्किंग विद वेरी अफोर्डेबल प्राइस। Okay. एक्सेसिबिलिटी उनको पूरी मिलती है। क्लिनिकल ट्रीटमेंट की बात है, ऑफ कोर्स द होल टीम वर्क्स फॉर दैट, बिकॉज एज अ मेडिकल कॉलेज आवर एथिक्स डज नॉट अलाउ कि पेशेंट की जो भी डायग्नोसिस बन रही है उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट किया जाए। सेकेंड व्हाट वी क्रिएटेड कि भाई ये जो TB के पेशेंट हैं, जो दोज यू वांट गुड फैसिलिटीज़, क्वालिटी सर्विसेज, लाइक प्राइवेट रूम्स एंड ऑल, तो वो सर्विसेज खड़ी कर दी है। इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म भी है उसमें, एंड वी आर श्योर कि हम अगले 3 सालों में हमने 600 बेड जो बनाए हैं, दैट विल बी फुल ऑफ इंटरनेशनल पेशेंट। अच्छा। हमारी उज्बेकिस्तान में यूनिवर्सिटी है, कजाकिस्तान में हम लोग मेडिकल कॉलेज लेके आ रहे हैं, तो वी आर प्लानिंग वर्किंग ऑन दैट। सो वी हैव वेरी गुड प्रेजेंस इन दी CIS कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो जस्ट वी हैव लॉन्च ए मंथ बैक, तो अभी भी हमारे पास में 8-10 पेशेंट, इंटरनेशनल पेशेंट अभी भी है, ठीक है। होपफुली ये 4-5 सालों में जो क्रेडिबिलिटी है और जो हमारी प्रेजेंस है, हमारे एलुमनाई हैं, इससे देश को बड़ा फॉरेन एक्सचेंज भी मिलेगा, और ये मेडिकल टूरिज्म, लेकिन उससे हिंदुस्तान की जो एक इनरोड होता है उन कंट्रीज़ में, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, कोई आदमी आपके यहाँ आता है, 1 मिनट रुकता है, ट्रीटमेंट करा के जाता है, हैप्पी होता है, तो यू ऑलवेज टॉक पॉजिटिविटी। तो परसेप्शन अबाउट इंडिया हेल्थ केयर में वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। IT में बहुत अच्छे हैं। तो हमारी जो एक्सपर्टाइज़ है, हम कैसे उन कंट्रीज़ में जो उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, ये US में, यूरोप में, सिंगापुर में हैं, उनके लिए इंडिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, एंड दे आर लर्निंग लॉट फ्रॉम इंडिया। राइट। हम लोग आगे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाएंगे उनके डॉक्टर्स को ट्रेन करने के लिए, बिकॉज इंडिया का तो हमेशा जो विश्व गुरु बनने का जो सपना है, अनलेस अनटिल यू डिलीवर समथिंग टू द पीपल हु नीड इट, करेक्ट, तो वो पूरा नहीं होगा। तो दैट वे आई थिंक सो फार पर्सनली आई फील कि आई हैव नॉट गिवन एनी मैंडेट टू भाई कि आपको पैसे कितने चार्ज करने, जो सही है वो कीजिए, एंड आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
Yeah, I think it is a brilliant thought because I think एक हमारा जो परसेप्शन होता था पहले कि हमें वेस्ट से सीखना है, हम हमेशा बात करते थे कैन वी गेट सम बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द वर्ल्ड, बट आई थिंक जो डिस्पैरिटी ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ जो इंडिया में देख रहे हैं, कीपिंग इन माइंड द पॉपुलेशन, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, जिस तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, आई थिंक दुनिया हमसे सीख सकती है. नहीं, ऑफ कोर्स अभी तो क्या है कि काफ़ी, अब मैं समझता हूँ अगले 10 सालों में अभी जितनी उन्होंने मेडिकल सीटें बढ़ाई हैं, और अभी हम लोग 1,20,000 के आसपास पहुँच गए यूजी में, जो प्रधानमंत्री का विजन है 1,75,000, तो आने वाले 10 सालों में हेल्थ केयर में और काफ़ी रिफॉर्म्स होंगे, और पर्टिकुलरली जो पुअर लोगों का, बिकॉज क्या कि एवरी सिक पर्सन इज अ लायबिलिटी फॉर द नेशन एंड द फैमिली. करेक्ट. हेल्दी पीपल आर द प्रोडक्टिव, क्योंकि देश के लिए अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना है, वी आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग समथिंग, अगर 8 घंटे ढंग से काम नहीं कर पा रहे फुल पोटेंशियलिटी, तो आप देश को नुकसान कर रहे हो. बिल्कुल. तो हर इंसान को अपनी ऑप्टिमम पावर के साथ में आउटपुट निकालना. आप देखिए चाइना में, वियतनाम में, द प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू इंडिया इज मच हायर. करेक्ट. वन इज देयर फूड हैबिट्स, देयर डीएनए, एंड सेकंड उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस में, थोड़ा ठंडे मौसम में, हमारे यहाँ थोड़ा सा माल न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा हैं, फार्म लैंड कम हो गई है, तो जो गरीब है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि ढंग से खाना नहीं मिलता, हाइजीन कंडीशंस के इश्यूज़ हैं. पिछले 70 साल की गवर्नेंस में हमने अभी भी देश की बहुत बड़ी आबादी को हम उस लेवल पर नहीं ले पाए कि वी आर नॉट एबल टू क्रिएट एज दैट नंबर ऑफ जॉब्स. एक्चुअली इंडिया, हमने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा माइलस्टोन नहीं मिले. सर्विस में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही है. अभी जो प्रधानमंत्री 10-15 साल में जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर चेंज किए, बट अभी भी 25-30 साल लगेंगे हमें हर एक आदमी को एक डिसेंट जॉब या उसकी इनकम बढ़ाने के लिए. तो जब तक उसके लिए हमें अपने लोगों को हेल्दी रखना है. अभी प्रधानमंत्री ने अभी जो मिलेट्स पे शिफ्ट किया है, तो मिलेट को शिफ्ट करने का कारण यही कि इंडियन कल्चर में, इंडियन सिस्टम में मिलेट्स इज मोर बेटर, बिकॉज हमारे जो इतने ज़्यादा हमने मासिव केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किए हैं, उसकी वजह से कैंसर बहुत बढ़ रहा है जी. बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. डायबिटीज़ बहुत बढ़ रही है. डायबिटीज़ बढ़ रही है तो नेचुरल सी बात है, ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज़ भी है, किडनी पे भी इशू आ रहे हैं. इतने लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट निकल रहे हैं डायलिसिस के लिए, किडनी फेलियर की, डेफोथेरेपी इज बिंग ऑन राइज, कैंसर इज ऑन राइज, कार्डियो प्रॉब्लम्स आर ऑन राइज, इन्फेक्शन ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं. तो वी नीड टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फूड टू एवरीवन. करेक्ट. एंड वी नीड टू क्योर देम बिफोर दे गेट सीरियस. एक फैमिली में अगर एक पेशेंट, अगर घर का हेड अगर बीमार पड़ जाए, खासकर लोअर मिडिल क्लास में, तो पूरे घर की दाल रोटी बिगड़ जाती है. बिल्कुल. एंड लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज गो बैंकरप्ट. दे सेल देयर हाउसेस, दे सेल देयर प्रॉपर्टी टू सेव ओन लाइफ. तो ये नहीं होना चाहिए. मतलब आयुष्मान में काफ़ी हुआ है, लेकिन आयुष्मान का अभी भी जो नंबर हैं अभी भी बहुत कम है. बहुत कम है. मेरे यहाँ आते हैं डेली कम से कम 2000 पेशेंट, उसमें से आयुष्मान के खाली 10% पेशेंट भी नहीं होते. 90% पेशेंट आज भी मतलब फ्री ओपीडी में आते हैं. एंड दैट मीन्स कि दे कैन नॉट अफोर्ड यहाँ 1 घंटे वेट करके, 2 घंटे वेट करके पर ट्रीटमेंट कराते हैं. तो उस पर प्रधानमंत्री को अवश्य काम करने की आवश्यकता है. हमने 2011 का सेंसस को लिया था. आई थिंक वी नीड टू इनहेंस द सेंसस, और खासकर ऐसी शहरों में जहाँ पर माइग्रेटेड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर बढ़ता है तो, बट कीपिंग नेशन हेल्दी शुड हैज़ टू बी ऑलवेज टॉप प्रायोरिटी. It has to be. अगर यदि हमारे बच्चे हेल्दी हैं, एनर्जेटिक हैं, तो वो देश के लिए कुछ कर पाएंगे. चाहे प्रोडक्शन की बात करो, चाहे सर्विसेज की बात करो, चाहे वो वटएवर भी असाइनमेंट्स. सर, क्योंकि आपका मेडिकल साइड, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग, ये सब पे फोकस रहा है. वन ऑफ द थिंग्स दैट हैज़ बीन मिसिंग इन द पास्ट इज़ दैट टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर में इम्प्रूव करती जा रही है, एडवांस होती जा रही है, लेकिन हमारे मेडिकल कॉलेजेस में हम वो टेक्नोलॉजी सिखा नहीं पा रहे हैं. We have, when a doctor passes out and goes and starts, especially surgeons, when they go out and they have to practice on, they have to start doing surgery on robotics, etc., it is the first time that they are exposed to robotics. What is it that you think should be done, and what is it that you are doing at Sharda? Actually क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि अफोर्डेबिलिटी इज अ बिग इशू. Yes. अभी जो फीस चार्ज हो रही है, पूरी फीस रेगुलेटेड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है. जी. उनका एजेंडा होता है कि भाई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कम रखी जाए. स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि वर्ल्ड की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो लाई जाए.
तो सरकार अपने कॉलेज के एक स्टूडेंट पे 1 से लेकर 1.5 करोड़ रुपया फॉर यूजी प्रोग्राम और 1.5 से लेकर 2.5 करोड़ रुपया पीजी पे खर्च करती है। हम लोगों के लिए प्राइवेट में इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेशन करके उठा के 50-60 लाख चाहते हम चलाई। अब रोबोटिक सर्जरी लेके आने, अभी रोबोटिक 15 करोड़ रुपये का आता है, उस पर काम कराना, सिखाना। तो ये जो थोड़ा सा कंट्रडिक्शन है सरकार के विजन में और द ग्राउंड रियलिटीज़ में, तो हमेशा फाइट करते हैं गवर्नमेंट से कि सर अगर अच्छे इंस्टीट्यूट्स को अगर आप बनना चाहते हैं तो देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व। करेक्ट। अगर आप रोबोटिक सर्जरी कराना 15 करोड़ का रोबोटिक है, उसकी सर्जरी की 1 लाख रुपये कीमत भी आती है, उसके जो टूल यूज़ होता है, उसके अंदर एसेसरी यूज़ होती है, तो उसको अफोर्डेबल कैसे बनाएंगे आप? टेक्नोलॉजी आज की डेट में अवेलेबल है और हम लोगों ने तो अभी ऑलरेडी शुरू कर दिया है कि वी आर स्टार्टिंग अ रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग सेंटर। कैडेवर लैब हम बना रहे हैं जिसमें एनिमल्स के ऊपर पहले सर्जरी ट्रेन होंगे। तो वी हैव टाइड अप विद द विंची इन काफ़ी लोग। पिछली बार हमने अभी इंटरनेशनल कैडेविक सर्जरी वर्कशॉप कराई थी यहाँ पे, जिसमें जॉन हॉपकिंस से, ड्यूक से काफ़ी सारे प्रोफेसर्स आए थे। दे हैव ट्रेन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ लाइक रोबोटिक सर्जन। तो हम अपनी खुद की लैब भी बना रहे हैं। अच्छा। वन इज़ अबाउट द कैडेवरिक लैब एंड वन इज़ द एनिमल लैब। तो कुछ सर्जरी एनिमल पे करी जाती है, उसके लिए लाइसेंस वगैरह अप्लाई कर रखे हैं। एंड कुछ सर्जरी चूँकि हमारी मेडिकल कॉलेज है, एनाटॉमी लैब है, तो हमें कैडेवर मिल जाते हैं, तो उन पर भी सर्जरी काफ़ी हमने पिछले हमने 12 कैडेवर मंगाए थे, फ्रेश कैडेवर। तो उसमें काफ़ी लोगों ने डॉक्टर सर्जरी करी एंड आई वाज क्वाइट एक्साइटेड। तो एआई का तो उपयोग हो रहा है हमारे, हम लोग भी कैडेवर अपना रोबोटिक सर्जरी का शुरू कर रहे हैं डिपार्टमेंट। अच्छा। वेरी सून वी विल स्टार्ट द ट्रेनिंग ऑल्सो फॉर द लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स। वी विल बिकम अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर दी, क्योंकि वी आर इन दिल्ली, तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। बिल्कुल। हार्ट ऑफ द सिटी में है, अकोमोडेशन अवेलेबल हैं, लोग अवेलेबल है, इस ग्रोइंग सिटी। करेक्ट। आई थिंक द सिटी इज गोइंग टू बीट नेक्स्ट 30-40 साल में दिल्ली को बीट कर जाएगी, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है जिस तरीके का एयरपोर्ट के पास बिल्ट हो रहा है, तो यहाँ से लेकर आगरा तक यूपी में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए तो इस इलाके से लेकर के आगरा तक बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल। अच्छा सर, हम हमेशा बोलते हैं कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल सीट्स, एंड द गवर्नमेंट कम्स अप विद सेइंग दैट ओके सीट्स बढ़ाते हैं। क्वांटिटी जब बढ़ाते हैं तो क्वालिटी पे फोकस है कि नहीं है? ये देखिए ऐसा है कि प्रोफेसर्स भी उतने नहीं है मेडिकल कॉलेजेस में। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली आज की डेट में देखा जाए तो इतने सारे मेडिकल कॉलेज सरकार ने इतने जल्दी बढ़ा दिए, तो चैलेंजेस तो बहुत है। हम लोगों ने सैलरियाँ काफ़ी बढ़ गई हमारे, 30-40%, 100% सैलरी बढ़ाई हम लोगों ने टू रिटेन द गुड टैलेंटेड पीपल। बट डेफिनेटली दिस इज शॉर्टेज। प्री पैरा में काफ़ी शॉर्टेज है, क्लिनिकल साइड में भी शॉर्टेज है, बट ठीक है। बट देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो बेसिकली उस लेवल पे जो डिलीवरी होनी चाहिए वो शायद अभी क्वेश्चन मार्क हो सकती है, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू कमेंट अबाउट एनीबडी। बट डेफिनेटली अगर मुझे चैलेंजेस आते हैं डेली बेसिस पे, बीइंग इन दिल्ली एनसीआर एंड रिटेनिंग माय 100% फैकल्टी एंड देन कंटिन्यूसली ट्रेनिंग देम एंड गेटिंग देम रिसर्च, इट्स अ हल ऑफ अ टास्क। पर स्मॉल टाउन में अगर जाते हैं थोड़ा सा यहाँ से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे उस तरह का टैलेंट को मिलना और वो उस तरह के डॉक्टर्स को तैयार करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। और वैसे भी क्या है कि प्रॉब्लम वो खाली प्राइवेट कॉलेज की नहीं, गवर्नमेंट कॉलेजों में भी 40-50% फैकल्टियाँ खाली हैं इस पोजीशन। सरकार में 30% खाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। प्राइवेट में अगर 10% फैकल्टी शॉर्ट हो तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, तो एफिडेविट दे करके। तो सरकार में तो ठीक है, बट चूँकि बच्चे काफ़ी लेबोरियस हैं। देखिए इंस्टीट्यूशंस में, मेडिकल प्रोफेशन में इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट और वो जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वन ऑफ द बेस्ट लाइक डिसिप्लिन वी हैव। तो ठीक है, जो बच्चे थोड़ा बहुत कमज़ोर रह जाएंगे तो डाउन दी लाइन फिर वो एक जो अभी एकदम डे 1 आकर के प्रैक्टिस कर सकता है, शायद 1-2 साल की ऐसा सब के बाद में विल बी ट्रेन। बट प्राइमरली चूँकि नीट है, इन्वॉल्व है, सारे बेस्ट ऑफ द ब्रेन आ रहे हैं, कोई क्वालिफाई करके 20 लाख बच्चे, अगर 1 लाख बच्चे घुस रहे हैं मेडिकल में, तो 1:20 का रेशियो हो गया। तो मेडिकल इज़ अ वेरी रिग्रेस एजुकेशन। बहुत पढ़ना पड़ता है, मतलब बच्चे को 5.5 साल का यूजी है, फिर 3 साल का पीजी है, फिर एसआरशिप है, 12-15 साल बेचारे को लग जाते हैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने के लिए। सर इसी पॉइंट पे मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि मेडिकल कॉलेज में एक तो हो गया साइंस ऑफ मेडिसिन, द ह्यूमन एनाटॉमी, देन देयर इज टेक्नोलॉजी जो हम रोबोटिक्स की बात कर रहे थे। देयर इज अ फोर्थ एलिमेंट दैट कम्स टू माय माइंड व्हिच इज बीन मिसिंग,
बिकॉज मैं पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा था डॉक्टर्स की, तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको प्राइवेट प्रैक्टिस में आते हैं लेकिन उनको प्रैक्टिस चलानी ही नहीं आती. दे आर वेरी गुड डॉक्टर्स, दे fantastic surgeons, but nobody has taught them the soft skills etc. to run a practice or run a institution. Is that something which is missing, or is it something that has consciously been kept away? नहीं ऐसा नहीं है. इट्स ए इंडिविजुअल टेम्परमेंट. ओके, मेडिकल कॉलेज में यस, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा मोर ऑन द रिसर्च एंड टीचिंग में होते हैं, तो दे डोंट टॉक सो स्वीटली विद द पेशेंट बिकॉज इनका कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. लेकिन जो प्राइवेट प्रैक्टिस में मोस्ट ऑफ देम आर बीइंग ट्यून टू बिहेव डिसेंटली विद द पेशेंट. और बेसिकली हमारे यहाँ तो ओथ होती है, उसमें एक कमिटमेंट किया जाता है कि भाई मैं अपने जो पेशेंट की सेवा के हिसाब से उस पर कार्य करूँगा. हमारा आयुर्वेदिक का तो यही था कि पहले आप किसी भी आयुर्वेदिक की थेरेपी देखिए तो ईश्वर से प्रार्थना करता था वैद्य पूरे मन से, और धन्वंतरी पूजा करने के बाद में पेशेंट को ट्रीटमेंट की बात होती नहीं, बिकॉज ही इज नॉट क्योरिंग द बॉडी, ही इज क्योरिंग द कंप्लीट डिसीज. नहीं, पूरी बॉडी को क्योर करने की बात होती है. तो हिंदुस्तान में वो एम्पैथी तो है, ठीक है, बट स्टिल लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर पेशेंट सेंट्रिक. और उससे बात करते हुए मैं खुद भी मानता हूँ कि पेशेंट के साथ 5 मिनट अगर प्यार से व्यवहार करो तो आधी बीमारी तो वैसी दूर हो जाती है. आई थिंक दिस इज इनबिल्ट क्वालिटी. एंड कुछ लोग हो सकते हैं कि जो रूड हों, तो बट ऐसे पीपल फिर वो मोस्टली दे कम टू द मेडिकल कॉलेज कि चलो भाई ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, बट आई विल नॉट, आई एम नॉट वेरी इंक्लाइंड टू स्पेंड माई टाइम इन द फ्लैटरिंग और यू नो प्लीजिंग यू. बिल्कुल. ऐसा सर, आपने बीच में बात करी थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना की, एंड आप यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं. सो कैन यू फॉर आवर व्यूअर्स एक्सप्लेन ये है क्या, और सेकंड इज व्हाट इज द, हाउ डज इट वर्क इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लाइक योर्स, and what are the challenges that you are facing where you feel that the government should relook how it has to be executed? देखिए, आयुष्मान का जो जितना बड़ा प्लान है ये, उसके बेनिफिट्स उस लेवल पर नहीं जा पा रहे हैं एट द पीपल एट द बॉटम लाइन. काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मैं कहूँगा मेरे यहाँ तो ऑलमोस्ट 80% लोगों के पास कार्ड नहीं होता, बट दे आर नॉट फाइनेंशियली कैपेबल. या हो सकता है वो थोड़ा मिडिल क्लास हो, बट वो मिडिल क्लास होना कोई पनिशमेंट नहीं है. उसके पास भी भाई कि ठीक है मैं 20,000 कमा रहा हूँ और मुझे ट्रीटमेंट कराना है, तो 1 लाख का ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो पेन तो होता ही है. मैंने कहा ना कि कभी भी घर में बीमारी होती है, बीमारी और मुकदमा 2 चीज़ें ऐसी अगर लग जाए ना तो पूरा घर क्लप्स हो जाता है. तो गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई थोड़ा सा एक तो आयुष्मान का कवर बढ़ाए. दूसरा क्या है कि आयुष्मान के क्लेम्स सेटल होने में बहुत टाइम लगता है, और जो रेट दिए हुए हैं दे आर बेसिकली, चूँकि मेडिकल कॉलेज है हम लोग को, तो हमको तो वैसे भी सेवा के भाव से काम करना है, तो हम लोग तो फ्री ट्रीटमेंट करते थे पहले आयुष्मान से पहले. अब हम जो है थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है, तो इवन इट इज़ नॉट बीन प्रॉफिटेबल इन टर्म्स ऑफ दी. मैं स्टैंड अलोन अगर आयुष्मान का काम करूँ तो शायद ईमानदारी से काम करेंगे तो आप उसमें कुछ मिल नहीं रहा है. रेट्स आर वेरी वेरी नेग्लिजिबल. ओपीडी के पैसे नहीं होते, और राउंड मतलब बहुत करना. मतलब बात बताऊँ कि आई थिंक जब हम कोविड में जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो पेशेंट विद वेंटिलेटर पे है तो ये अपने बाईपैप मशीन पे 2,000 रुपये पर डे, और उसमें 3,000 रुपये की ऑक्सीजन लग रही है. तो वो थोड़े से सरकार को उस पर थोड़ा सोचने की आवश्यकता है. और दूसरा इसको थोड़ा यूनिवर्सल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में दवाइयाँ महंगी होती आ रही है और बीमारियाँ बढ़ रही हैं बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंजेस, एक्स्ट्रा यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, स्ट्रेस, अनरियलिस्टिक यू नो लाइक, बिकॉज हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स काम करते हैं. आप पूरे टाइम मीडिया में बैठे हुए देख रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उससे बीमारी बढ़ती है. स्ट्रेस है, उससे बीमारी बढ़ती है, बिकॉज बॉडी का अगर जो अच्छी खुश नहीं रहोगे ना, इफ यू आर नॉट हैप्पी देन योर बॉडी इज रिलीजिंग लॉट ऑफ टॉक्सिन्स एंड दैट विल टर्न आउट टू बी यू नो लाइक गो टू एनीवेयर. आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है. मेरे को डायबिटीज़ नहीं थी, पीछे मेरा मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ 2-3 साल, तो इतनी स्ट्रेस हो गई भाई. 2,000 लोगों की तनख्वाह बढ़ रही है, गवर्नमेंट डिड नॉट रिकॉग्नाइज, यू नो सम रीज़न वाज देयर. ओके, बट स्ट्रेस आदमी को बहुत किल करती है. आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले लोग खुश रहते थे, थोड़े में भी खुश थे. आज क्या है कि हम जो हमारे पास उससे खुश नहीं है, दूसरा हमारे पास नहीं है उससे ज़्यादा टेंशन है. तो जो अभी RSS का जो एजेंडा है विश्व हिंदू बनने की बात कर रहे हैं, तो हमको स्पिरिचुअलिटी पे भी फोकस करना पड़ेगा, कंटेनमेंट पे फोकस करना पड़ेगा.
तो वो शायद कर रहे हैं, देखिए लेट्स सी, बिकॉज वी हैव बीन फॉलोइंग लॉट ऑफ वेस्टर्न थॉट्स, बट जो सिस्टम इकोसिस्टम वेस्ट में एप्लीकेबल है वो इंडिया में एप्लीकेबल हो, आई डिसएग्री विद दैट। हमारे देश की अर्थव्यवस्था अपनी है, हमारा इकोसिस्टम अपना है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बीन वाइप्ड ऑफ बाय द लार्ज कंपनीज। लाइक रिटेल में इंडिया वाज अ कंट्री फॉर रिटेलर्स, हर गली में हर मोहल्ले में छोटी दुकान थी, कर रहे थे, तो अपने स्वाभिमान से जी रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, जो मिला उसमें खुश है। अब वो सब बेचारों का बिजनेस धीरे धीरे उड़ रहा है, इट इज़ गेटिंग एग्रीगेटेड विद लार्ज लाइक मल्टीनेशनल ई कॉमर्स कंपनी। उससे देश में चैलेंजेस आ रहे हैं जो हम उतने जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो दे हैव नॉट क्रिएटेड एनी न्यू बिजनेस, दे हैव जस्ट टेकन द बिजनेस फॉर द पुअर पीपल। जो मिडिल क्लास लोगों का बिजनेस चाह रहे हैं ना, तो उससे भी बहुत स्ट्रेसेस हो रही है। एंड सर, आपकी बातों से मेरे को समझ आ रहा है कि हम हेल्थ केयर की जब बात करते हैं, इट इज़ नॉट और शुड नॉट बी जस्ट इलनेस ओरिएंटेड. You know, we have to look at things that we could do in the environment to create prevention. yes. And plus हमारे अपने traditional sciences भी हैं जो इंडिया से शुरुआत हुई थी. Is there something that you are doing, or is there a plan of doing something where we are actually providing integrated healthcare in a holistic manner? Yeah, now I'll tell you one thing. It's very close to my heart, and I have no space here. मेरे पास यहाँ पे बिल्डिंग में वैसे नहीं बचा है, बट वी आर प्लानिंग टू ओपन द मेडिकल कॉलेज इन आगरा विच आर नीटी का। तो उस पर हमें आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड नेचुरोपैथी सेंटर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनने की बात कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि मेरा मानना क्या है कि आयुर्वेदिक की जो थेरेपी है ना, दैट इज़ टू क्योर द बॉडी। एलोपैथी का क्या है कि इंटेंसली जो भी प्रॉब्लम है उसको वहीं की वहीं एलिमिनेट कर दो, बट अनलेस अनटिल यू क्योर द बॉडी, तो आपका जो है ना लाइफ स्टाइल में चेंज करने पड़ेंगे आपको। तो देयर इज़ ए नीड ऑफ होलिस्टिक ट्रीटमेंट। प्रधानमंत्री चाहते भी है कि भाई आयुर्वेदिक को और एलोपैथी के ऊपर रिसर्च हो करके जितना भी हो सके ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को, ट्रेडिशनल जो नॉलेज है वो लोगों में लाई जाए। तो आयुर्वेदा वो आपके खान को कंट्रोल करेगा, पान को कंट्रोल करेगा, आप एक्सरसाइज चेंज कराएगा आपको, देन दे गिव यू हर्बल सप्लीमेंट्स टू क्योर योर जो वात पित्त कफ जो तीन बॉडी के एलिमेंट्स है, बेसिकली होल बॉडी वर्क्स ऑन दैट, उसको एलिमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो ये मेरी बड़ी इच्छा है, और उसमें एक जेनेटिक होम बनाने की बात भी कर रहे हैं हम लोग 500 रूम्स का, कि पीपल विद द ओल्ड पीपल, बिकॉज 75-80 में आपके सारे बॉडी के ऑर्गन सेटल हो जाते हैं, उसको स्टिमुलेट करने में एलोपैथी कैन नॉट डू एनीथिंग। इट इज़ आयुर्वेदा जहाँ से आप उनकी बॉडी को स्टिमुलेट कर सकते हैं, उनको हल्के हल्के आसव हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं विच बेसिकली हैव नो साइड इफेक्ट्स। आप भस्मों में जाते हो तो थोड़ी सी दिक्कतें होती है, बिकॉज मेरे को आयुर्वेदिक की बैकग्राउंड है, मेरे फादर वैद्य थे। अच्छा। तो उसके लिए आई एम वेरी ऑब्सेस अबाउट आयुर्वेदा, और आई हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग द फिलॉसफी ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। फैंटास्टिक। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि इफ यू हेल्प देम गेटिंग सम फूड सप्लीमेंट। अभी एक नई थेरेपी हुई है, व्हाट इज कॉल्ड फंक्शनल मेडिसिन। फंक्शनल मेडिसिन, यस। तो उसमें क्या है, बेसिकली इट्स ए फॉर्म रिफाइंड फॉर्म ऑफ आयुर्वेदा। आपका पूरा डीएनए मैपिंग करके आपका निकाल लेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं, एंड देन दे विल गिव यू सम हर्बल सप्लीमेंट्स, ऑर्गेनिक मतलब नॉट सिंथेटिक, टू गेट दैट पार्ट ऑफ बॉडी जो बेसिकली कॉज कर रहा है, करेक्ट, उसको ठीक करने की बात कर रहे हैं। ओबेसिटी पे काम कर रहे हैं वो लोग, लाइफस्टाइल पे बात कर रहे हैं, तो उस पर काम हो रहा है। बट आयुर्वेदिक में कहा जो एक तो आयुर्वेदिक की सरकार को जो है थोड़ी सी प्रोसेस डिफाइन करनी पड़ेंगी, जो दवाइयाँ बन रही हैं उसका FDA अप्रूवल हो, या इंडिया में ऐसा सिस्टम हो कि जो रिसर्च लैब बने। मेरी तो बहुत इच्छा है कि गवर्नमेंट शुड मेक ए मैकेनिज्म कि वेयर ऑल द आयुर्वेदिक मेडिसिन शुड बी टेस्टेड, एंड जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो ऑर्गेनिक हों, क्योंकि आयुर्वेदिक की फिलॉसफी बहुत कम्प्लेक्स है, वो पूरा नेचर के साथ अलाइंड है। जैसे ह्यूमन है वैसी बॉडी है, तो वन लाइफ अमर्जेस टू अनदर लाइफ। फैंटास्टिक। ठीक है, तो जो एक जीवन से आप लेकर के दूसरे जीवन में आप डाल रहे हैं ना, दैट इज फिलॉसफी ऑफ आयुर्वेदा। एलोपैथी हैव नो लाइफ, सब सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकल्स हैं, सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स दे हैव नो लाइफ। राइट। आयुर्वेदिक में क्या है कि पूरा जो भी हर्ब ले रहे हैं वो एक लाइफ है, वो मर्ज होकर के आपकी बॉडी में जा रही है, तो दैट एक्चुअली इज बीन टेंड ऑफ फ्रॉम द एजेस। ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट मैंने कभी सोचा नहीं था, बट दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट यू ब्रॉट अप। आपकी बातें सुन के, और आपने पिछली कॉन्वर्सेशन के अंदर 2-3 बारी स्पिरिचुअलिटी का जिक्र किया, ठीक है ना,
आप मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग समबडीज लाइफ, Okay. राइट? Just a thought, is there a way that you're looking at bringing spirituality to the person who's now going to be a doctor, so that you nurture somebody whose thought process is such that can be impacting देखिए lives? ऐसा है कि कोई भी सक्सेस अगर आपके अंदर एम्पैथी, ऑनेस्टी और स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो वो पहले तो होगी नहीं बहुत लंबे समय तक, और होगी तो खुशी नहीं देगी. जी, एंड ऑफ द डे वी वांट हैप्पीनेस इन आवर लाइफ. करेक्ट. दैट कम्स ओनली व्हेन हार्ट इज प्योर. आपकी सोच बदल जाती है, आपकी अप्रोच बदल जाती है, आपकी सक्सेस की रेट परसेंटेज बदल जाती है. तो मैं ये मानता हूँ कि जीवन में आप जो कुछ भी करें वो सत्य के साथ चलेंगे तो आपकी सक्सेस अनलिमिटेड है. यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट एंड योर एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंस आफ्टर 60 वो आपकी सबसे बड़ी टेक अवे है. योर चिल्ड्रन, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड योर हेल्थ. Absolutely. एंड इफ एवरीथिंग इज फाइन, आई थिंक यू मेड योर लाइफ सक्सेसफul. Fantastic. एंड इफ इट इज मिसिंग दिस थिंग, आप उठा कर स्टडी करके देख लीजिएगा. सक्सेस पीपल एंड अनसक्सेसफुल पीपल में थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो उनकी आप जब ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी सब चीज़ों में देखेंगे ना तो आपको डिफरेंस दिख जाएंगे. So before we end this conversation, my last question to you is, what's next at Sharda? वेल वी आर फोकसिंग मोर टू हेल्थ केयर. हम लोगों का विजन है कि भाई प्रधानमंत्री का एक तो क्या है कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाए हिंदुस्तान में. आयुर्वेदिक के ऊपर अभी साइंटिफिकली आई एम नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी मैन्युफैक्चरर मेडिसिन आर फॉलोइंग द राइट प्रोटोकॉल्स. क्योंकि जैसा चुका बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो पहले अभी नेचुरल पैदा होती है, अब उसको फार्मिंग कर रहे हैं उसकी स्ट्रक्चरली केमिकल यूज़ करके. तो आई डोंट थिंक दिस मेडिसिन आर गोइंग टू हेल्प बिकॉज वंस यू आर जो बैसाखी पे जो बच्चे बढ़ते हैं ना वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं. उससे कि जो चीज़ जो हर जहाँ पैदा होती है नेचुरल फॉर्म में पैदा होगी तो उसमें नेचुरल ताकत होगी. बिल्कुल. उसमें केमिकल आपने पेस्टिसाइड डाल दिए ना तो बस तो जाएगी लेकिन वो वीक होगी. आज ये हो रहा है ना, हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर इतना यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है. आपकी बॉडी की जो बॉडी इज़ नॉट ट्यून टू द टॉलरेंस यू नो फॉर दिस केमिकल एंड पेस्टिसाइड. आपका सारा फूड जो है वो डीएनए मॉडिफाइड है. एवरीथिंग इज सपोर्टेड आर्टिफिशियली टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. जी. आई थिंक दैट इज कॉजिंग द सीरियस हार्म टू द बॉडी. हमारे टाइम में भी हम बच्चे थे तो भी लोग बीमार होते थे, तो हमारी एवरेजेस बहुत कम थी. जी. आज हमारी एवरेज वो बहुत बढ़ गई. लेकिन हमें ये देखना है कि आने वाले 50 सालों के बाद में हमारे जो हमारी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है ना वो किस लेवल की. इंडिया में स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा प्रमोटेड नहीं है. बिल्कुल. आप यूएस जाइए, जर्मनी जाइए, यूरोपियन कंट्री जाइए, बहुत बड़े स्पोर्ट्स ग्राउंड है. तो हमें स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स इज नॉट स्पोर्ट, इज बेसिकली टू कीप योर फिट. करेक्ट. तो आजकल छोटे स्कूल हैं 2 एकड़ में 5 एकड़ में बने हुए हैं, खेलने की जगह ही नहीं है. जी. और पेरेंट का प्रेशर है कि पढ़ो 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 पढ़ो. आई वुड से कि दैट इट हैज़ टू बी बैलेंस बिटवीन द फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड द मेंटल एक्टिविटीज़. एब्सोल्युटली. तो अगर ये नहीं करेंगे तो हमें देश के लिए चैलेंजेस हमको आ रहे हैं. और दूसरा हमको जो है देश में ये कम से कम ये जो केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ है ना उसको कम से कम करना चाहिए. बिकॉज वर्ल्ड हैज़ सफर्ड. हमको वापस वहीं जाना पड़ेगा, हमें ऑर्गेनिक पे ही आना पड़ेगा. पूरी दुनिया में बात ऑर्गेनिक की हो रही है कि जो नेचर के साथ जो चीज़ हो रही है, एक लाइफ विल मर्ज टू अनदर लाइफ. हर जगह जीवन ही जीवन को सपोर्ट करता है. फूड भी इज ए लाइफ. पैदा उसमें भी लाइफ है एंड दैट मर्ज टू योर बॉडी. अगर उसमें केमिकल है तो आपकी बॉडी को भी केमिकल मिलेगा. तो नेक्स्ट बिजनेस शारजा का क्या होगा? I focus more on to healthcare. Okay, opening chain of hospitals and with affordable price. And एक जो अपना taking this university to the कहाँ जाएगी पता नहीं, बट लेकिन विजन यही है कि it should become the top institution in the country. वो 25 साल में होता है, 50 साल में होता है, because एम्स इज़ नॉट एम्स. वो 70 साल लगे बनने में. तो इसको बनने में कितने साल लगेंगे इस पर तो फोरकास्ट करना मुश्किल है. बट यस, विजन एंड मिशन यही है कि एक एथिकल इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, और सर्वे सुकुंतु सर्वो हमना जो कहानी जब सब सुखी रहे सब बता रहे हैं. आगरा मेडिकल कॉलेज उसमें हमारा एक एक्सपेरिमेंट है कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट सेंटर बने जिसमें मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक हो, रिहेबिलिटेशन सेंटर हो. आज की डेट में एक बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारे यहाँ पे लाइक यू नो सर्जन हैं, पर सर्जरी के बाद में जो कॉम्प्लिकेशन होती है खासकर न्यूरो के बाद में उनकी एक शॉर्टेज है. ब्रेन स्ट्रोक हो गया, 4 महीने पड़े हुए हैं. You can't keep them in hospital because you get infected. Correct. But you can't keep them at home because you cannot care them. Then you need a place, you know, where you are using natural therapy, Ayurveda, yoga, and allopathy as required. So holistic health is the next Holistic. mission. I would say that if we could be able to do it,
ये हमारा है करीब 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट, हम उसको बनाएंगे अभी। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर सम क्लियरेंसेस, हो गया तो ये आई थिंक इन माई लाइफ टाइम आई थिंक 5-6 साल लगेंगे उसको बनने में, बट दिस विल बिकेम ए The future. innovation, you know, that how I have the medical college, naturopathy and everything come together one place and helping to people with the old age, particularly with the 80 plus. It will be very beautiful to see how the modern technologies with the traditional wisdom Yes, come yes. together to help people age better. And so I think this is a very beautiful vision. मैं हमेशा मानता हूँ कि जो काम एक इंसान कर रहा है शायद दूसरा इंसान भी वही काम कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से काम करते हैं वो फ़र्क होता है, जिस इंटेंट से काम करते हैं, जो विजन होती है वो फ़र्क होती है. एंड दैट्स व्हाट आई सी इन यू. देखिए जहाँ एम्पैथी, सिंपैथी और ऑनेस्टी रहती है ना, एवरीथिंग गोज राइट. एम्पैथी, सिंपैथी एंड ऑनेस्टी, आई थिंक दैट्स अ वेरी. तीनों चीज़ें अगर हैं, अगर आप ईमानदार हैं, आपको लोगों के प्रति दर्द है, लोगों के प्रति सहानुभूति है, तो आप जीवन में जो कुछ भी करेंगे ठीक ही करेंगे. On You that, can't go wrong. on that note, it's a beautiful note to end the conversation on. Thank you so much for taking our time to speak with us, sir. Yeah, thank you.